everyone, I'm Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 8 of previous year question paper discussion of environmental studies. Environmental studies is one of the subject of graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective. So here we are discussing the question paper of February 2021. So let's start with the first question of session 8. That is, the biophysical carrying capacity is blank population that can be supported by the resources of the planet at a given level of technology. Options are the minimum, the maximum, all of the half of the. Okay, so we have discussed carrying capacity. Carrying capacity क्या होता है? The capacity of an ecosystem to hold certain number of organisms. What does it mean? Suppose we have an ecosystem. उस इकोसिस्टम में सपोज आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा ऑर्गेनिज्म भर दो, सो व्हाट विल हैपन? द ऑर्गेनिज्म दे विल फाइट फॉर द रिसोर्सेज, दे विल फाइट फॉर द सनलाइट, फॉर द सॉइल और फॉर द फूड. तो उन चीजों के लिए दे विल फाइट फॉर द टेम्परेचर. ठीक है, सो उनको, क्योंकि आपके इकोसिस्टम की कैपेसिटी कम थी लेकिन आपने उसमें ज्यादा ऑर्गेनिज्म या ज्यादा प्लांट्स भर दिए. ठीक है, सो जिसके कारण इकोसिस्टम आपका इम्बैलेंस हो जाएगा. द स्ट्रॉन्गर स्पीशी इट विल बी देयर, द वीकर वन हैज टू लीव द इकोसिस्टम, या उसको जाना पड़ेगा या उसको माइग्रेट करना पड़ेगा, या वो मर जाएगा बिकॉज उसको रिसोर्सेज ही नहीं मिल रही. सो दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी. अगर हम बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी की बात करें, ये है कि हमारे प्लैनेट की जो रिसोर्सेज हैं वो कितने पॉपुलेशन को होल्ड करके रख सकते हैं, वो कितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं. सो दैट इज बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ द प्लैनेट कि वो कितने पॉपुलेशन को रिसोर्सेज दे सकता है. ठीक है, ऐसा ना हो कि जो पॉपुलेशन है उनको फाइट करना पड़ रहा है टू गेट द रिसोर्सेज. सो दैट इज बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी. So that is the maximum population, minimum नहीं, the maximum. So अगर वो उससे ज्यादा भरता है, the ecosystem और planet जो है वो हमारा imbalance हो जाएगा. ठीक है, अगर कम minimum नहीं आएगा, अगर maximum तुम्हें पता है मतलब उससे ज्यादा तुम उस ecosystem में नहीं अपने organism भरोगे. So it is the maximum capacity, the maximum population that can be supported by the resources which are available on the planet at a given level of technology. This is biophysical carrying capacity. So correct answer is B. 2. Question number 2. Which of the following is not a greenhouse gas? So greenhouse क्या है? Greenhouse effect है हमारा. So greenhouse effect is we do have certain gases in our atmosphere which are acting as greenhouse gas. What they do? They allow the incoming solar radiation, the UV radiation, to enter the lower atmosphere, but doesn't allow the outgoing IR radiation to go back. In fact, वो उनको trap कर लेती हैं. So though this is greenhouse effect, ठीक है, और इस जो gases trap करती हैं the outgoing IR radiations को, उनको हम greenhouse gases कहते हैं. So हमारे air में, like अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर की कॉम्पोजिशन में, लाइक इसका अगर हम एयर का कॉम्पोजिशन देखें, earlier it was 0.03%. The percent of the in air composition, CO2 का जो percent था, it was 0.03%. But because of man-made activities like deforestation, burning of the fuel in vehicles or industries, so हमारा जो CO2 level है वो increase हो चुका है. So अभी जो air का composition है उसमें CO2 0.03% नहीं है, it is 0.04%. और CO2 जो है बेसिकली इट इज अ ग्रीन हाउस गैस. अगर वो 0.03% तक थी तो इट इज इन फैक्ट हेल्पिंग, या ये इस गैस के कारण अर्थ का जो लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो वार्म है, जिसके कारण लाइफ इज पॉसिबल. ठीक है, सो बहुत ठंडा होएगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है. CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस. ऐसी और भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि by trapping the IR outgoing radiation, by trapping the heat radiations, हमारे lower atmosphere का temperature balance करके रखती है. ठीक है, लेकिन CO2 का level increase हो चुका है because of anthropogenic activities. So जिसके कारण अगे ग्रीन हाउस गैस तो ये है ही, बट ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं. ठीक है, मीथेन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैस. So we will be just taking the names of the gases and I will be telling you which is a greenhouse gas, which is a not.
सो मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस. क्लोरीन, देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन किसी के कंपोनेंट्स जो हैं दोज आर ग्रीन हाउस गैसेस. सो क्लोरीन अटैच हो रही है, फर्दर कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं, सो दोज कंपोनेंट्स आर ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है. अगर हम ओजोन की बात करें, so this question is basically tricky question. ठीक है. It answer could be chlorine, answer could be ozone, because ozone is also a greenhouse gas. लेकिन यहाँ पे अगर मैं ओजोन और क्लोरीन को कंपेयर करूं, द आंसर वुड बी लाइक क्लोरीन इज ग्रीन हाउस गैस, ओजोन इज. लेट्स डिस्कस ओजोन. ठीक है. ओजोन जो आपकी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजोन. वन इज गुड ओजोन, वन इज बैड ओजोन. गुड ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में है, दैट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, और वो ओजोन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है. बट बैड ओजोन जो आपकी ट्रोपोस्फीयर में है, जहां पे हम लोग रहते हैं ट्रोपोस्फीयर में, सो ओजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मोक फॉर्मेशन. ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस. लेकिन क्लोरीन भी ग्रीन हाउस गैस है, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा. ठीक है. बट इसको फिर हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को? क्लोरीन इज अ ग्रीन हाउस गैस फॉर श्योर. ओजोन अगर वो गुड ओजोन है तो वो ग्रीन हाउस नहीं है. ठीक है. सो हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करा कि ये इट इज अबाउट गुड ओजोन, नॉट अबाउट बैड ओजोन. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज 3. तो ये क्योंकि क्लोरीन तो ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरीन के कंपोनेंट्स जो है दोज आर ग्रीन हाउस गैस. ठीक है. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, ओजोन. Clear? Otherwise, all four are the greenhouse gases. They are acting as greenhouse gases. They are the part of greenhouse gases. But ozone की two types हैं. अगर हम गुड ओजोन की बात करें, दैट इज नॉट ग्रीन हाउस गैस. क्लोरीन के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं which are acting as greenhouse gas. So answer is 3 for this question. Which of the following is not related to climate change? कौन climate change से related नहीं है? Options are UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. It would be CCC. 3 C's should be there. ठीक है. United Nations Framework Convention on Climate Change. So this is related to climate change. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. ठीक है. So this is also related to climate change. Kyoto Protocol. Kyoto Protocol आपका जो है, it came in 1997. It came in 2 phases. So इसका जो फर्स्ट फेज था, इट एंडेड इन 2012, एंड सेकेंड फेज जो था वो एंड हुआ था 2020 में. देन ये आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इट चेंज्ड इनटू पेरिस अग्रीमेंट. क्योटो प्रोटोकॉल इज बेसिकली फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. सो ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो आपका क्लाइमेट चेंज कम होगा. So this is related to climate change. Montreal Protocol. So Montreal, it came in 1987 and it was regarding to reduce the ozone depleting substances, for example, chlorofluorocarbon. So Montreal Protocol was not related to the climate change. Its aim was to reduce ozone depleting substances. So our ozone layer, which is in stratosphere, it is getting depleted because of certain substances like chlorofluorocarbon. So उनको कम करना ताकि ओजोन डिप्लीट ना हो, इसका एम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज? दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. 4. क्वेश्चन नंबर 4. द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर? सो वी ऑल डू नो ओजोन लेयर इज इन स्ट्रेटोस्फेयर. देयर इज अ पिक्चर ऑन स्क्रीन. ये आपके लेयर्स की, एटमॉस्फेरिक लेयर्स की जो है पिक्चर है. ठीक है. सो ट्रोपोस्फेयर की हाइट देखें, इट इज अप टू 8 किलोमीटर. सो लाइक ये जो आपको किलोमीटर्स दिख रहे हैं, द हाइट दिख रही है आपको, दिस इज लाइक यू विल फाइंड डिफरेंट हाइट्स. लाइक अगर आप इंटरनेट पे वेबसाइट देखोगे, हर वेबसाइट पे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट हाइट्स मिलेंगी. इवन बुक्स में भी आपको डिफरेंट हाइट मिलेगी. सो द एवरेज अगर हम ट्रोपोस्फेयर की हाइट की बात करें, इट इज अराउंड 11. जो 8 किलोमीटर लिखा है, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इट इज कर्व. सो नॉर्थ पे पोल्स पे अलग आपकी हाइट है, इक्वेटर पे अलग है. सो एवरेज इज अराउंड 11 किलोमीटर. ठीक है. सो यहाँ पे 8 लिखा है. फ्रॉम 8 to 50 इट इज स्ट्रेटोस्फेयर, एंड वी डू नो कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर है. अगर हम ऑप्शंस पढ़ें 0 to 10, यहाँ पे आपकी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एवरेज 11 किलोमीटर आपका ट्रोपोस्फेयर है. ठीक है. सो 15 to 50 किलोमीटर के बीच में कहीं पे हमारे पास ओजोन लेयर है. ओजोन लेयर जो है ना, इट इज 3 मिलीमीटर थिक, ओनली 3 मिलीमीटर थिक,
एंड इट इज अराउंड बेसिकली 23 और 25 किलोमीटर के बीच में है. 23, 25, 28 किलोमीटर के बीच में वी डू हैव ओजोन लेयर. ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में 15 to 50 किलोमीटर इज द आंसर. Moving on to the last question of the session, the pH of rainfall was measured to be as per the following at 4 places A, B, C, D. Which place had the acid deposition? Acid क्या होता है आपका? The pH below 7 is acidic, pH more than 7 is basic. So आपको बताना है कि किस प्लेस पे एसिड डेपोजिशन है. तो जिसकी pH कम है, that would be acid. There would be acid deposition. A 6.5, B 7.2, C 7.5, D 7.9. So correct answer is A 6.5, acid deposition. So this was the last question of the session. So those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners and also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be from your subject area only. They will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 759493997 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.